ગુજરાતમાં મીડિયા ઇવોલ્યુશન સંદર્ભે મીડિયાના વિવિધ સ્વરૂપો ગુજરાતમાં બદલાતા સમયને કેવી રીતે અનુકૂલિત થયા છે અને રાજ્યના વિમર્શને આકાર આપવામાં તેઓ શું ભૂમિકા ભજવે છે? આમ તો આ સવાલ અમારા અજયભાઈ જવાબ આપી શકે વધારે, કેમ કે સીધા અત્યારે પ્રત્યક્ષ પત્રકારિતાની સાથે છે. હું તો ઇતિહાસનો વિદ્યાર્થી છું, એટલે પત્રકારત્વ થોડું ઘણું એમાં આવે, પણ માત્ર પત્રકારત્વ ના આવે, બીજું પણ આવે. પણ એ વાત સાચી છે કે ગુજરાતી પત્રકારત્વે પણ હું એક શબ્દનો ઉપયોગ જરૂર કરીશ, રાષ્ટ્રીય ચેતનાની સાથે સંબંધિત છે. ઉમાશંકર જોશીએ એક કાવ્ય લખ્યું હતું અને એનું પહેલી પંક્તિ એ હતી કે હું ગુર્જર ભારતવાસી. ગુજરાતી તો છું પણ ભારતીય છું. આ ભારતીયતા ગુજરાતની રગે રગમાં પહેલેથી છે અને એના બે ત્રણ ભૌગોલિક કારણ પણ છે. પ્રફુલ્લજીએ જે ભૂગોળની વાત કરી મને બહુ ગમી, ખગોળ ભૂગોળ બંને, અને એમનો જે વિચાર વિસ્ફોટક જે વક્તવ્ય થયું એના પછી બોલવું થોડું અઘરું છે. પણ હવે માસ્ટર ખરા આપણે, એટલે 45 મિનિટ ગમે તેમ હલાવી દઈએ બધે વિદ્યાર્થીઓની સાથે, એ પ્રમાણે હું ચલાવીશ. ગુજરાતની વાત કરતા હતા સાહેબ. ગુજરાતની પાસે મોટો દરિયા કિનારો છે અને આ દરિયા કિનારાએ ભૌગોલિકતાને રાષ્ટ્રીયતાની સાથે સંસ્કૃતિની સાથે જોડી દીધું છે. ગુજરાતનો માણસ, ગુજરાતી જે અહીં છે એ બધા જ, એ 5000 વર્ષ પહેલાં લોથલમાં હતો કે ધોળાવીરામાં હતો કે અત્યારનો 2023માં, એની પાસે 4 સ છે. એસ નહીં, સ. સૌથી પહેલાં એ સંકલ્પ કરે છે. કોઈ પણ સામાન્ય માણસ પણ સંકલ્પ કરવાનો, મારે કંઈક કરવું છે, આ કરવું છે, તે કરવું છે, વગેરે વગેરે. સંકલ્પ કર્યા પછી માત્ર સંકલ્પથી ચાલતું નથી, એટલો એ વ્યવહારુ છે. અને એટલે એમણે સંકલ્પની સાથે સમન્વય જોડ્યો. એ સાહેબ બીજા બધાને મારે લાવવા છે, બીજા મારી સાથે રહેશે, સહનવ ભુનકતું થશે તો થશે. એટલે સંકલ્પ પછી સમન્વય આવ્યો. અને છતાં એ વાત સાચી છે કે સંઘર્ષ તો કરવો જ પડે છે. અસ્તિત્વનો સંઘર્ષ છે, જીવનનો સંઘર્ષ છે, સંસ્કૃતિનો સંઘર્ષ છે, વ્યક્તિત્વનો સંઘર્ષ છે. એટલે પહેલા સંકલ્પ, પછી સમન્વય અને પછી સંઘર્ષ. આ 3 વસ્તુને એ સંવાદની સાથે જોડે છે. એ 4માં સો થયા અને 5મો સો એટલે એ સિદ્ધિના શિખર સુધી પહોંચે છે. ગુજરાતમાં બીજો પણ એક આખું આપણી પરંપરામાં આવ્યું છે, જે આખી ભારતીય પરંપરાનો એક ભાગ છે. વિનાશમાંથી નિર્માણ. સાહેબ, આપણે વિનાશમાંથી નિર્માણમાં પહેલેથી જ, આજે થોડા વર્ષ પહેલાં જ કચ્છમાં ધરતીકંપ થયો તો આપ સૌને ખબર છે, અમે પણ જોયો છે બધાએ. અને જોયા પછી અમને લાગે છે કે લાગ્યું હતું એ વખતે કે કેવું આ ધરાશાયી, આમાં કાંઈ નહીં આવે. હવે આખું ખંડેર થઈ ગયું. કચ્છ ક્યારેય ઊભું નહીં થઈ શકે. સાહેબ, 2 વર્ષમાં આજે કચ્છમાં જઈએ તો ભૂકંપની એક પણ નિશાની નથી. કારણ શું? તો કારણ આ માણસના ચિત્તમાં જે વિનાશમાંથી નિર્માણની પરિકલ્પના છે એ પરંપરિત છે. લોથલનું નામ ઘણા 5000 વર્ષ પહેલા એમાં કે આ ત્યાં સમુદ્ર અને નદી બંને હતા અને સમુદ્ર અને નદીને કારણે સુનામી આવ્યા કરે વારંવાર. તો એકવાર લોથલ નષ્ટ થયું, સમુદ્રમાં ખલાસ થઈ ગયો. લોથલવાસીઓએ પોતાના પુરુષાર્થ અને પરાક્રમથી ઊભું કર્યું. બીજી વાર થોડાક વર્ષો પછી ફરીવાર સુનામી, દરિયો એના ઉપર ફરી વળ્યો. બીજી વાર લોથલવાસીઓએ પોતાનું નગર નિર્માણ કર્યું. ત્રીજી વાર આવું થયું, ચોથી વાર આવું થયું. સાહેબ, 4 વાર એવી ઘટનાઓ છે કે લોથલના નાગરિકોએ પોતાના નગરને વિનાશમાંથી નિર્માણ તરફ લાવ્યા છે.
સોમનાથની પરિકલ્પનાની આપણે સોમનાથનો ઇતિહાસ આપણે જાણીએ જ છીએ, એમાં વધારે જવાની આવશ્યકતા નથી. પણ જ્યાં જાઓ ત્યાં આ જે ગુજરાત છે એ ગુજરાત પત્રકારત્વમાં પણ છે. હું એક નાનકડું ઉદાહરણ આપીને મારી વાત આ પ્રશ્ન હું પૂરો કરીશ. એટલે આમ એમ કહેવાય છે કે સાહેબ ગુટેનબર્ગે પેલી મુદ્રણ કળા શોધી અને વગેરે વગેરે થયો. મુદ્રણ કળા ત્યાં શોધાઈ અને પછી ધીરે ધીરે જુદા જુદા દેશોમાં આવી, આપણે ત્યાં આવી. ગુટેનબર્ગનો ઈરાદો શું હતો મુદ્રણ કળા શોધવાનો? એને લખ્યું છે કે મારે બાઇબલ એક નાનકડું બનાવવું છે. સાહેબ ધર્મ પ્રેરિત પોતાનો ધર્મની વિશેની વાત કરવી. ત્યાંથી એ આવ્યું ગોવામાં. આપણે ત્યાં એબીસી ત્યાં જવા નીકળ્યું હતું જહાજ, અને મુદ્રણ કળાની સામગ્રીની સાથે વચમાં તોફાન આવ્યું એટલે ગોવામાં અટવાયું. ગોવાના મિશનરીઓએ, ઈસાઈ મિશનરીઓએ પણ પોતાના વિદ્યાર્થીઓને ધાર્મિક વસ્તુ ભણાવવા માટે એનો ઉપયોગ કર્યો. સાહેબ આ બે વસ્તુ, એના પછી તરત જે ત્રીજું થયું એ મહત્વનું છે આપણા માટે, ગુજરાતને માટે પણ અને આખા દેશ માટે પણ. દીવનો એક વણિક નામ ભીમજી પારેખ, એ સુરતમાં હતો. એણે વિચાર્યું કે આ મુદ્રણ સામગ્રીથી આ બાઇબલને આ તેને બધું થાય છે, ભાગવત અને મહાભારત ને ગીતા કેમ ન થાય? એટલે એણે છેક ઇંગ્લેન્ડ સાથે પત્રવ્યવહાર કર્યો, ત્યાંથી મુદ્રણ સામગ્રી મંગાવી. બદનસીબે એનો જે કરનારો હતો જે માણસ એ બરાબર ના નીકળ્યો. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે પણ છાપવાનું વસાવ્યું હતું. આ જે ઘટનાઓ છે એ ઘટનાઓ આપણને બનાવે છે કે સાંસ્કૃતિક રીતે ગુજરાતી પત્રકારત્વે આગળ વધ્યા. છેલ્લી એક નાનકડો મુદ્દો આની સાથે કહી દઉં, કારણ કે મહત્વનો છે. સાહેબ ગુજરાત આમાં પ્રાંતવાદ નહીં માનશો, કેમ કે અમે તો બધા નમસ્તે સદાવત્સલેવાળા છીએ. તો જ્યાં અમારી ભૂમિકા છે કે જ્યાં જ્યાં છીએ ત્યાં આપણું ગૌરવ ઉમેરવું. તો આ ગૌરવ ઉમેરવા માટે ગુજરાતીઓએ સત્યનું ઉમેરણ કર્યું છે. સત્ય, ટ્રુથ. ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ હતી આગ્રામાં, અને માઇનર વોલકર કે કોઈ મોટો પત્રકાર એને આવ્યો તો એણે એક સરસ વાત કરી હતી કે ભાઈ છેવટે યુનિવર્સિટીઓ નું કામ શું છે? ઠીક છે, આર્થિક થાય, પણ એને બીજું પણ એક કામ કરવાનું છે, ટ્રુથ સિકિંગ એન્ડ ટ્રુથ ટેલિંગ. ટ્રુથ ટેલિંગ એન્ડ ધેન ટ્રુથ સિકિંગ. અને પછી એણે ઉમેર્યું કે આ કામ પત્રકારત્વે પણ કરવાનું છે. તો ગુજરાતમાં તો સત્યની પ્રતિષ્ઠા છે. ગાંધીજીની આત્મકથાનું નામ સત્યના પ્રયોગો છે. દયાનંદ સરસ્વતીએ જ્યારે પાખંડ ખંડન કર્યું એનો જે ગ્રંથ છે એનું નામ સત્યાર્થ પ્રકાશ છે. 24 વર્ષનો પત્રકાર કરશનદાસ મૂળજી સામાજિક સુધારા માટે લડ્યો અને લાઇબલ કેસમાં જીત્યો એવો જમાનામાં. એનું મેગેઝિનનું નામ હતું સત્યપ્રકાશ. દાદાભાઈ નવરોજીએ જ્યારે પારસીઓ ઉપર મુસ્લિમ આક્રમણ જ્યાં મુંબઈમાં થયા ત્યારે અખબાર શરૂ કર્યું, એનું નામ હતું રાસ્ત ગોફતાર, એટલે કે સત્યનો પ્રવક્તા. અને આજે પણ સૌરાષ્ટ્રમાં ક્યાંય જાઓ તો સોરઠવાસી, એટલે આમ તો આખા સૌરાષ્ટ્ર, એના વિશે કહેવત છે, સાચું સોરઠીઓ ભણે. આ ગુજરાતી પત્રકારત્વના લોહીમાં છે. જી ધન્યવાદ. મીડિયાના ઇવોલ્યુશનનું બહુ સરસ સચિત્ર વર્ણન સાંભળતા હોય એવું લાગ્યું અમને. એક પ્રશ્ન અજયભાઈને. જી. રચનાત્મક સક્રિયતાની જરૂરિયાત વર્તમાન લેન્ડસ્કેપમાં ગુજરાતમાં કન્સ્ટ્રક્ટિવ એક્ટિવિઝમ સમયની જરૂરિયાત શું છે, અને તે રાજ્યના અવારનવાર ગેરજાણીતા નાયકો, એટલે આપણે અનસંગ હીરોઝ જેને કહીએ છીએ, એના પર કેવી રીતે પ્રકાશ પાડી શકે જે ગૌરવશાળી ગુજરાતના ઇતિહાસનું દર્શન આપે છે? વિષ્ણુભાઈ હમણાં વાત કરતા હતા ને, ફ્રોમ ગુટેનબર્ગ. Sir, if you see the history of almost 575 years, matlab Gutenberg to Zuckerberg, Mark Zuckerberg, from Bible to textbook and from textbook to Facebook, from papyrus to pixel, or from stories to Trump page. Sir, newspaper took almost 44 years to reach 5 crore readers. न्यूज़पेपर को 5 करोड़ रीडर
मेगाहर्ट्ज तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 44 इयर्स लगे. रेडियो टुक almost 34 years to reach 5 crore listeners. Telephone took almost 20 years to reach 5 crore subscribers. Television took almost 13 years to reach 5 crore viewers. Internet took almost 5 years to reach 5 crore users. And Twitter took only 3 months to reach 5 crore trolls. सर कितना भी रिसेशन आ जाए ना, गूगल का जो ट्रैफिक है वो एट द रेट ऑफ 400% पर एनम बढ़ता ही है ना. द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट जिस तरह से गूगल का ट्रैफिक बढ़ रहा है, आपके वक्तव्य को मैं सर सुन रहा था, आपने एक बात की, आई एंड यू बिलोंग टू द प्रिंट मीडिया बेसिकली, है ना. एंड द बिगेस्ट चैलेंज दैट ए न्यूज़पेपर एडिटर इज फेसिंग टुडे इज हाउ टू हैव अ ब्रिज बिटवीन डिजिटली नेटिव एंड डिजिटली इमिग्रेंट. मतलब मैं और आप और विष्णु भाई, हम तो वो डायोड ट्रायोड टेट्रोड के ज़माने से हैं, जब हमको ट्रांजिस्टर और वो पढ़ाते हुए, सर्किट बनाते हुए, वोल्टामीटर और वो बताते हुए कहा गया था कि कभी फ्यूचर में चिप्स भी आएंगी और माइक्रो चिप्स भी आएंगी. सर आज गुजरात में हम सेमीकंडक्टर के प्लांट जो हैं वो उसका इनोग्रेशन 4-5 दिन पहले अमित भाई ने किया, बराबर है. एंड सेमीकंडक्टर जो है वो सिलिकॉन वैली जो सैन फ्रांसिस्को की है, मुझे लगता है कुछ दिनों बाद वो सानंद में आ जाएगी. मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जिस तरह से ये एवोल्यूशन हो रहा है. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट जो नई जनरेशन है जिसके बारे में मैं आपसे उसमें चर्चा कर रहा था कि सर मेरे बच्चे आजकल कॉलेज में जाते हैं तो ये LGBT, LGBTQ, क्वियर, इस सब की चर्चा जो है वो इतनी ज़्यादा हो रही है और उसमें सेक्सुअल प्रेफरेंस वाली बात नहीं है, बट वो जो टर्मिनोलॉजी जो सिखाई जा रही है जो इंस्टाग्राम में, नेटफ्लिक्स में और ये तो सर यहाँ एक नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट जो आप जेंडर आइडेंटिफाई करे तो मतलब वो दाढ़ी मूछ देखने से लगता है कि इज अ मेल, बट ही सेड नो, मेरा सेक्सुअल प्रेफरेंस जो है वो फीमेल का है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर है. उसमें वो स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं अब गर्ल्स हॉस्टल में रहना चाहता हूँ. नाउ गर्ल्स आर अपोजिंग कि नहीं आप मेरे यहाँ नहीं रहते. नहीं, मेरा सेक्सुअल प्रेफरेंस गर्ल का है, मैं बाय नेचर जो है मैं गर्ल हूँ और मैं यहीं रहना चाहता हूँ. एंड देन ही, क्योंकि वो तो अपने आप को ही भी नहीं लिखता है, सी भी नहीं लिखता है कि दे, है ना, तो वो बोलता है कि मुझे वाइस चांसलर या प्रोवोस्ट जो है वो इनके रूम में, इनके बाथरूम में शेयरिंग की परमिशन दे. और देयर मस्ट बी ए पॉलिसी, क्वियर पॉलिसी जो है वो, अगर उसके बारे में मेरे पास वो आया मिलने के लिए और मैंने कहा कि बिल्कुल बेतुकी की पागल जैसी बात कर रहे हो, अगर आपको यही प्राइवेसी चाहिए तो आप हॉस्टल छोड़ के दूसरे, इसे यू आर सफरिंग फ्रॉम होमोफोबिया. Now this is an allegation to an editor that if I don't publish this story then I am suffering from homophobia. This is one part of it. दूसरा कि सर मैं उसके बारे में कुछ भी अगर उल्टा सुल्टा लिखूँ तो मुझे तो अभी जो IPC चल रही है वो 499 से लेके 506 में कहीं भी वो फिक्स कर सकता है. इफ आई राइट एनीथिंग वो बोलता है कि नहीं आपने मेरे में. सर डिजिटल पे वो कुछ भी लिख दे, है ना. हालांकि अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, फिर भी मतलब दे कैन गेट अवे बाय राइटिंग व्हाटएवर दे वांट टू. एंड जो सर आपने जो बात की ना, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, मतलब अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म. मैं तो उसको 100 साल पहले ले जाना चाहता हूँ. 1857 में जो कुछ लोग उसको विप्लव शब्द देते हैं, हाँ मैं तो मानता हूँ कि वो आज़ादी का संग्राम ही था, बराबर है कि नहीं. तो वो जो आज़ादी का संग्राम था उससे 90 इयर्स का अगर आप हिस्ट्री देखें तो लोकमान्य तिलक से लेके बाकी सब लोगों का जो एम जो था वो था कि भाई इट इज़ फॉर द नेशन, है ना, देश को आज़ादी दिलाने का ही वो मकसद था. सो 1857 से लेके 1947 का जो जर्नलिज्म था वो बिल्कुल देश को आज़ादी दिलाने के लिए था. उसके लिए किसी के माइंड में कोई संशय नहीं था, कुछ इंग्लिश अखबारों को छोड़ के, जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, जिसके रिसर्च पेज, ऑपेड पेज के बारे में आपने कहा है. आई वॉज पार्ट ऑफ दैट पेपर, सो आई नो मोर देन दैट, सो नहीं कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा. बट टू टेल यू ऑनेस्टली, उसके बाद 1947 से 1977 आपने जिक्र किया वो जो सेंसर सीजर से लेकर ओएस थापर और बाकी सब केसेस. 1977 में हमने इमरजेंसी भी देखी, इमरजेंसी के बाद जनता सरकार, और फिर सर जो 1991-1992 का जो
पीरियड आया जिसे हम एलपीजी युग कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद जो कॉरपोरेटाइजेशन हुआ ऑफ मीडिया, सर उसमें जर्नलिस्ट जो है वो तो अपने अपने कॉरपोरेट हाउसेस, उसमें ट्रूथ सीकिंग और ट्रूथ राइटिंग की तो सर बात ही नहीं आती है। मतलब वो तो आप अपने अखबार की पॉलिसीज जो हैं वो कॉर्पोरेटाइजेशन के आधार पे चलती है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। और उसके बाद सर ये जो डिजिटलाइजेशन आया है ना, उसमें तो हाउ कैन यू मैन्युफैक्चर कंसेंट इन द सोसाइटी। और सर यहाँ बैठे हैं प्रकाश जी, मैं आपको बताऊं कि आई वॉज पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर डेलीगेशन टू जोहानिसबर्ग मनमोहन जी के साथ। ये ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको जस्ट एक पर्सपेक्टिव देने के लिए बता रहा हूँ। वी वर टोल्ड, यू नो, अब वो आप पीएम के साथ जाते हो तो फिर वो आपकी बाईलाइन आती है, ऑन बोर्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू नो। सो ये सब वो कहने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आई वॉज वर्किंग विद भास्कर एज, यू नो, स्टेट एडिटर। तो मैं दिव्य भास्कर के लिए भी कॉपी फाइल करता था, दैनिक भास्कर के लिए भी करता था और डीएनए के लिए भी करता था। तो वहाँ जब पीएम जो कहते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई दिस टाइम वी हैव आल्सो हायर्ड एन एजेंसी जो लॉबिंग कर रही है, एंड वी आर थिंकिंग दैट, यू नो, वो एजेंसी को इस बार हमने भी पेमेंट किया है, एंड वील हैव, यू नो, शशि थरूर एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। केतकर साहब दिल्ली से प्लेन में बैठे और जोहानिसबर्ग आया, तब तक मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, यू नो, वो जो प्लेन में मिलता है वो 1 2 3 4 जिसकी जितनी कैपेसिटी थी बैग लेके उन्होंने सबने अपने ब्लैकबेरी से उससे स्टोरी फाइल करना चालू किया। उस जमाने में इतना तो इंटरनेट नहीं था कि प्लेन में आपको इंटरनेट मिले। तो जो डोजियर दिए गए थे उसके आधार पे सबने शशि थरूर का मतलब बायोग्राफी, उसका वो बायो लिखा, सो दैट, यू नो, जब जैसे ही नीचे कनेक्टिविटी मिलेगी, शशि थरूर लाइकली टू बी सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट टाइम इंडिया को मिलेगा। बहुत खुश थे कि काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़, पीएम को कोट नहीं करना है फिर भी स्टोरी मिल गई। ये वो मेरे जैसे को तो हिंदी में लिखना है, गुजराती में लिखना है, फिर इंग्लिश में लिखना है, 6 घंटे उसमें ही चले गए। बाय द टाइम हम नीचे उतरे तो संजय बारू साहब आए दौड़ते दौड़ते, गाइस प्लीज किल किल किल, आपकी स्टोरी किल करनी है। हमने पूछा क्यों भाई इतनी अच्छी? सर नहीं, बाद में रात को डिनर में बताएंगे। बाद में बताया गया कि अमेरिका ने वहाँ पे किसी बहुत बड़ा ट्रस्ट था, ही नोज इट, उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट जो था वो दे के दूसरी लॉबी को हायर किया, और वो जो दूसरी लॉबी जो थी उन्होंने सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पे नॉर्थ कोरियन, अरे एक साउथ कोरियन जो था बंदा, उसको वहाँ पर अपॉइंट कर दिया। वो सॉफ्ट, मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट का भी लॉबिंग होता है, एक तरह से टेंडरिंग होता है। सो हम लोग रात को जब डिनर में बात कर रहे थे तो दे सेड कि फार्मास्यूटिकल लॉबी जो है वो इतनी पावरफुल है कि 1.75 लाख करोड़ का बजट है टू डू रिसर्च। रिसर्च मीन्स रिसर्च इन दोज डेज, यू नो, एड्स, मलेरिया एंड टाइफाइड के बारे में रिसर्च करना, और फिर उनकी ही मेडिसिन वहाँ पर 56 कंट्रीज में जाए उसके लिए। तो उतने बजट के लिए 2000 करोड़ या 5000 करोड़ दे दे उनके लिए, यू नो, इट वाज पीनट्स। सो मेनी पावरफुल लॉबीज, कॉर्पोरेटाइजेशन से ऊपर भी जो है, जो आज की तारीख में भी इंडिया में दे आर सेटिंग नैरेटिव्स, यू मे नेम इट कैम्ब्रिज एनालिटिका। और ये सिर्फ भारत में ऐसा नहीं है सर, हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन में भी यही लॉबीज जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती है। डोनाल्ड ट्रंप उसी की वजह से चुनाव जीतते हैं, और ब्रिटेन में कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी एजेंसी वो ब्रेग्जिट भी करवा सकती है, और भारत में भी ये लोग काफ़ी कुछ करवा सकते हैं। सो न्यूज़पेपर और मीडिया, खास करके सर मीडिया का कंट्रोल जो है, प्रिंट मीडिया जो है वो साइड में जा रहा है, और फोर्थ एस्टेट जो है उसकी जगह ये जो डिजिटल मीडिया जिस तरह से हावी हो रहा है, और उसमें जिस तरह से नैरेटिव्स आ रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में या बाकी सब जगह से, जिस तरह से स्मार्ट मैसेजेस, लेकिन वो मैसेज क्या कन्वे करते हैं, मुझे लगता है कि the biggest challenge before a journalist or an editor is, you know, first of all, whatever I print, you know, I have to do fact check कि ये जो मेरा रिपोर्टर या ये खबर आई है जिस एजेंसी से आई है वो सही है या नहीं है, और उसके पीछे क्या एजेंडा है, किसका क्या एजेंडा है। सो यू नो, फेक न्यूज़, हेट स्पीच एंड दिस काइंड ऑफ रॉन्ग नैरेटिव, उससे मुझे सबसे ज़्यादा बचना है। और मुझे नहीं मालूम है कि कौन सी एजेंसी कौन सा न्यूज़ कहाँ प्लांट करवा रही है।
वो कई बार फ्रंट पेज पे भी आता है, कई बार एडिट पेज पे आता है, कई बार स्पोर्ट्स पेज पे आता है, कई बार एडिट में, कई बार ऑपेड में. बट देयर इज ए पावरफुल लॉबी जिसको आज की तारीख में इंडिया में इंटरेस्ट है. एंड कभी मौका मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि केतकर का साहब के साथ एक अच्छा संवाद हो इसके ऊपर फ्यूचर में. आई एम लुकिंग फॉर दैट. जी, बट इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड, आई टेल यू. आपकी बात में दो बात आई जो सही में हम सबको थोड़ा शॉक भी कर रही है. एक तो सबसे पहले जो आपने इवोल्यूशन का जो पेस बताया कि 100 साल में नहीं देखा वो 10 साल में देखा, 10 साल में नहीं देखा वो 1 साल में हमको देखने को मिल रहा है. एक ये, और दूसरा जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल वाली बात, तो कितनी गंभीर स्थिति है, कौन से फोर्सेस क्या ड्राइव कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी एनर्जी कहाँ चली जाती है वो हमें देखना पड़ता है. संवाद में आगे बढ़ते हुए मैं महानुभावों से विनती करता हूँ. सॉरी, मैं गुजराती से हिंदी से हाँ, ये मैं भी ऐसे आ गया मैंने भी ऐसे शुरू कर दिया, तो कुछ बातें यहाँ से भी शुरू हो. मेरा तो काम था सेतु बनना, मैं किनारा या बंद बनना नहीं चाहता. नहीं, आप कंटेंट क्या दे रहे हो उसके ऊपर है. मतलब जो केतकर साहब के साथ जो उनको मैं सुन रहा था, उनका एक बात उनकी मुझे बहुत सही लगी कि ये जो यंग जनरेशन है. फॉर एग्जांपल मैं अपने ही 22 साल के बेटे को देखता हूँ. मतलब ही इज डूइंग हिज मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. उसने ना बाबरी ध्वंस देखा है, ना उसको गुजरात के राइट्स के बारे में कुछ मालूम है, ना उसको अभी के कुछ ट्रेंड्स. उसके पास कोई बैगेज नहीं है, उसके पास कोई बैगेज नहीं है. अब उसको आप क्या कंटेंट दे रहे हो? उसके यहाँ अभी कॉलेज में LGBT और LGBTQ और क्वियर्स, इनके राइट्स और उसकी बात चल रही है, क्योंकि वही नैरेटिव उनको सेट किया जा रहा है. बराबर है कि नहीं? तो इंटेलेक्चुअली उनको पढ़ाने वाले लोग जो कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं, वो लोग अपना ही जो आपकी जो बात थी ना सर के इंटेलेक्चुअल, उसमें आज की तारीख में जैसे ह्यूमन राइट्स 1996 में, उसके पहले तो सर मैं भी स्टूडेंट था MS यूनिवर्सिटी में, मैंने भी लॉ किया था, लेकिन तब तक ह्यूमन राइट्स के बारे में इतना नहीं आया. लेकिन वो गुजराती में और हिंदी में 1990 से 96 के तक वो आ गया. तो वो परकोलेट जो सोसाइटी में ऊपर से नीचे तक होता है, वो कौन कर रहा है और उसके पीछे किसका एजेंडा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू गो टू यूनिवर्सिटीज लाइक PDPU, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और निर्मा यूनिवर्सिटी, और जो जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एक्सेलेंस कहते हैं, बराबर है कि नहीं, IIM में चले जाइए, NID में चले जाइए. मैं और आप जो ग्रास रूट की बात कर रहे हैं उनसे वो बिल्कुल अलग ही लेवल की बात कर रहे हैं. उनका इस सिटी के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, सोसाइटी के साथ भी कोई कनेक्ट नहीं है. मतलब वो कई बार जो मैं जो कह रहा हूँ ना, जो ब्रिज होना चाहिए वो तो है नहीं. आप मुझे बताइए फ्रेंकली, IIM का अहमदाबाद सिटी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? NID का अहमदाबाद सिटी के डिजाइनिंग में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? वो क्या ट्रैफिक कंजेशन के लिए या कुछ करते हैं? सेफ्ट यूनिवर्सिटी वो इतना बड़ा कंसल्टेंसी बाकी जगह करती है, अहमदाबाद के ट्रैफिक के लिए कुछ कर रही है? अगर करेगी तो अभी वो दे विल चार्ज लाइक बॉम्ब. आपका सिटी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? नहीं है. सो वो एक मुझे बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है कि आप उसको मतलब कंटेंट क्या दे रहे हो. वुड्रो विल्सन की बात सर आपको मालूम होगी कि जब वो प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहा था, तो अमेरिकन सोसाइटी वाज वेरी वेरी पेसिमिस्टिक सोसाइटी. एंड अमेरिकन सोसाइटी में नोबडी वांटेड टू गो फॉर वर्ल्ड वॉर. लेकिन कुछ पावरफुल लॉबीज थी जो चाहती थी कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है उसको वॉर में जाना है, तो ही हम उसके इलेक्शन को फंडिंग करेंगे. एंड प्रेसिडेंट की मजबूरी थी कि उसको इलेक्शन जीतने के लिए फंडिंग की जरूरत थी, तो ही कॉम्प्रोमाइज विद सर्टेन पावरफुल लॉबीज. और वो पावरफुल लॉबीज उन्होंने मतलब वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका आते हुए सीप्स जो था उनको भी सिंक कर दिया और कहा कि देखो ये जर्मन ने किया है, ये हमारा अमेरिका का दुश्मन है. एंड उन्होंने अमेरिका के बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मेकर्स, बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स, बेस्ट कॉलम राइटर, बेस्ट एडिटर्स, अखबार के मालिकों को इन्फ्लुएंस किया. मतलब साम दाम दंड भेद जो भी किया होगा उन्होंने उस जमाने में. और उसकी वजह से अमेरिकन सोसाइटी, वो जो क्रील कमीशन अपॉइंट किया था, वो 6 महीने में अमेरिकन सोसाइटी विच वॉज अ वेरी पेसिमिस्टिक सोसाइटी बिकम सो हिस्टोरिकल
that every American wanted to tear every limb of a German. So वो सोसाइटी में एक मास हिस्टीरिया जिस तरह से उन्होंने क्रिएट किया, या एक if I borrow word from Noam Chomsky, they have manufactured a consent in society. Such experiments are going on. सर मैं आपको बताऊं, एज एक्टिविस्ट मुझे ऐसा लग रहा है, वन ऑफ द थीसिस, राम माधव साहब का एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, और मैंने भी ये करीब 15-20 दिन पहले ये आर्टिकल लिखा, जो परसों जो बाइडन ने भी ये बात कही सर, लेकिन कोई नोबडी इज कनेक्टिंग डॉट्स. आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो सर, यू कैन करेक्ट बिकॉज ये ओपन फोरम है. G20 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रस्ताव रखा अबाउट न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर. जो न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बॉम्बे से लेके ग्रीस तक जाएगा, बराबर है कि नहीं? और वो जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी को बदल सकता है. एंड इट इज ए डायरेक्ट थ्रेट टू चाइना, जो वन बेल्ट वन रोड कर रहा था. और ये जो G20 के अंदर अमेरिका से लेके यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब कंट्रीज ने हमको सपोर्ट दिया. एंड दे से दैट वन ऑफ द रीजन दैट हमास, जिसके पास कुछ नहीं था, उसके पास इतने वेपन्स भी आ गए, उसने इसके ऊपर अटैक भी किया इजराइल. एंड हमास नोज, उसके बॉस जो हैं वो तो कतार में बैठे हैं, लेबनान में बैठे हैं, तो वो इजराइल के ऊपर हमला करते हैं. इजराइल जो है पैलेस्टाइनियों को मारता है. वो पूरे वर्ल्ड में जो नैरेटिव जो है वो वर्ल्ड इज डिवाइडेड. बट आज की तारीख में आप देखिए सर कि कतार, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान सबसे ज़्यादा जो इस्लामिक देशों का मुखिया बनना चाहता है, पूरा नैरेटिव बदल गया. और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला था वो मुझे नहीं लगता 2 महीने में अब उसका रिपोर्ट भी आ पाएगा या वो होगा. तो अगेन हमारा जो वो चल रहा है उसमें एक वो व्हील जो है उसमें डाल देना, मतलब वो काफ़ी इजी बात है. तो ग्लोबल आप देखिए सर, नैरेटिव बदल गया. अभी रसिया यूक्रेन वॉर को कोई याद ही नहीं कर रहा है ना? एंड वी ऑल नो दैट चाइना इज सेइंग कि हम मीडिएट करने को तैयार हैं. तो कौन है इसके पीछे? कतार भी कह रहा है कि मैं इनको अगुआ लोगों को छुड़ा सकता हूँ. दैट मीन्स कि आप उसके साथ संपर्क में तभी आप कह सकते हो ना कि मैं इसको छुड़ा सकता हूँ. मतलब दे आर वेरी पावरफुल लॉबीज जो हम लोग, लेकिन सर इस पर कोई रिसर्च ही नहीं कर रहा है कि भाई इंडिया का ये इनिशिएटिव था, इसका इफेक्ट वहाँ आया, तो ग्लोबल इफेक्ट कहीं भी हो सकता है. एंड इंडिया हैज़ बिकम ए फोर्स टू रेकन विथ, जो काफ़ी पावरफुल कंट्रीज जो हैं उनको ये सहन नहीं होता है. जी बहुत बहुत धन्यवाद.